हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज आपको अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में गैल्वेनिक सेल के बारे में बताऊंगा। गैल्वेनिक सेल किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए देखते हैं गैल्वेनिक सेल की वर्किंग और उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी जानेंगे और सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं गैल्वेनिक सेल की वर्किंग। गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल देयर आर टू चैम्बर्स। गैल्वेनिक सेल में दो चैम्बर्स होते हैं और इन दोनों चैम्बर्स में अलग अलग मेटल के, प्योर मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो देखिए इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। दिस इज वन चैम्बर एंड दैट इज अनदर चैम्बर। It contains a metallic electrode, pure metallic electrode made up of zinc। एक चैम्बर जिंक का इलेक्ट्रोड रखता है and another chamber contains pure copper electrode, and we use in zinc electrode chamber zinc sulfate as a pure electrolyte। zinc sulfate as a pure electrolyte and another chamber which contains pure copper as a electrode, we use copper sulfate as a electrolyte। So this is pure copper electrode and this is copper sulfate electrolyte. It is pure zinc electrode and it is zinc sulfate as electrolyte। And now as we connect these two electrodes, they start producing the electric current। It start producing electric current। Since this cell is working spontaneously means जैसे ही हम इन दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं ये तुरंत अपने आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लगते हैं। दैट्स वाई दिस गैल्वेनिक सेल वर्किंग एज स्पॉन्टेनियस एंड ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव गिव्स एनर्जी नेगेटिव because it continuously losing their own energy, so its gives free energy delta G will be negative। delta G will be negative। we all know that delta G is equal to delta H minus T delta S, where delta S is entropy and delta H is enthalpy। so here delta H must be less than T delta S, then the value of delta G will be negative। okay, and now as this electrode start working, pure zinc and copper, these are the two metallic electrode we use, and from electrochemical series we know that zinc is more reactive than copper। so zinc can displace copper from copper sulfate to form
zinc sulfate and displace the copper. In जिंक इलेक्ट्रोड, प्योर जिंक, अब देखिए यहां पर क्या होता है, प्योर जिंक losing 2 electrons, pure zinc losing 2 electrons convert into zinc dye positive and goes into the aqueous solution. So this zinc after losing 2 electron goes into the aqueous solution. So in this electrode, means zinc electrode, concentration of electrons increases. Due to the, and electron is negative charge particle. These are also called as anions. Due to the accumulation of anions in this electrode, it is also known as anode. So we look after here that at anode there is क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन takes place. यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड these electron start moving from zinc to copper electrode. As this electron reaches to copper electrode, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, तो जितने भी सोल्यूशन में कॉपर डाई पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, ऑल द कॉपर डाई पॉजिटिव अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड फॉर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन. इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव और कैटायंस, इट इज नोन एज कैथोड. तो जिस इलेक्ट्रोड पर कैटायंस इकट्ठे होते हैं वो कैथोड कहलाता है, और जिस पर एनायंस कलेक्ट होते हैं वो एनोड कहलाता है. ठीक है, तो इस प्रकार से एनोड एंड इट इज कैथोड. तो कैथोड पर क्या होता है, एट कैथोड copper dye positive which is present in aqueous solution after receiving 2 electrons convert into copper solid and there is reduction takes place. यहाँ क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, ओके. अब हम देखते हैं इन सेलों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जिंक से कॉपर की तरफ होने लगा, एंड वी ऑल नो कि करंट इज फ्लोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. It is the direction of electric current. As zinc after losing 2 electrons goes into the aqueous solution, यहाँ पर जिंक डाई पॉजिटिव कलेक्ट होने लगे इन एक्वस सोल्यूशन, एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव इनटू द एक्वस सोल्यूशन, इट हैव देयर ओन पोटेंशियल. तो इस इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक खुद का पोटेंशियल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल हो जाएगा. एंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एट द इलेक्ट्रोड, इट हैव देयर ओन पोटेंशियल. इसका अपना खुद का एक पोटेंशियल होगा और इसका नेगेटिव पोटेंशियल, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल. ठीक है, सो एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो प्लेस क्या कहती है, इंटरफेस. तो एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट देयर इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल स्टेबलाइज. ठीक है, एंड इट इज नोन एज
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। और एनोड पोटेंशियल तो ये है ही क्योंकि ये एनोड है। सेम एज when electrons are reaches to cathode, all the copper die positive collect here and remaining here SO4 die negative। यहाँ पर सोल्यूशन में क्या बचे, SO4 डाई नेगेटिव। कॉपर डाई पॉजिटिव तो सारे के सारे यहाँ से चले गए, ये सब यहाँ कलेक्ट हो गए। सो ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 डाई नेगेटिव इन इलेक्ट्रोलाइट्स, it have their own potential, and due to accumulation of copper die positive on this electrode, it have their own potential। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल। एंड नाउ ड्यू टू विच एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट देयर इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टेबलाइज एंड इट इज नोन एज कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए, एक हमारे पास हो गया एनोड और रिडक्शन, एनोड और ऑक्सीडेशन, एनोड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नंबर 1, और दूसरा हो गया हमारे पास कैथोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। So we observe here that there is an redox reaction takes place because at one electrode is oxidation takes place and another electrode there is a reduction takes place. So in galvanic cell oxidation reaction is taking place। हम देख रहे हैं कि यहाँ एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 0 से +2 हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पर कॉपर डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड कॉपर पर जा रहा है, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सो इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं, ये हमारा एनोड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो हम इसको बोल सकते हैं ई कैथोड, पहले वाले को बोलेंगे ई कैथोड और सेकंड वाला कहलाएगा ई एनोड, ठीक है। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए। एंड नाउ वी सी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको देखिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ई नॉट से। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं व्हेन द कंडीशन ऑफ द सेल आर स्टैंडर्ड। सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ ए सेल, ठीक है। सो देयर आर सम कंडीशंस फॉर द स्टैंडर्ड सेल। सो स्टैंडर्ड कंडीशन of cell, standard condition of cell, concentration of electrolyte, concentration of electrolyte is equal to 1 मोलर। अच्छा देखिए, एक चीज इसमें छूट गई जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया कि ये बोथ द चैम्बर्स आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, ठीक है। हालांकि हमारे सेल के स्टार्ट होने में कोई खास इससे प्रॉब्लम नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हम साल्ट ब्रिज को कनेक्ट करते हैं। अभी हम इस साल्ट ब्रिज का भी
फंक्शन बताएंगे कि यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, तो साल्ट ब्रिज को अटैच करना बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये साल्ट ब्रिज से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा, इट इज नोन एज साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज। तो हमारा कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 है। दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सेल का 298 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर, एंड प्रेशर मस्ट बी 1 atm। Pressure must be 1 atm. If all these three conditions are satisfied in a galvanic cell, then the electrode potential that we obtain, it is called standard electrode potential and it is represented by E naught। इसे हम E naught कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, और सेल पोटेंशियल तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इट इज नोन एज ई सेल और EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम EMF की डिफिनीशन देना चाहें या सेल पोटेंशियल की हम डिफिनीशन देना चाहें तो हमारी क्या डिफिनीशन आएगी, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द सेल में जो दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है उनके सेल पोटेंशियल, उनके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, EMF ऑफ द सेल और ई सेल। हाँ, ये बात है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू IUPAC रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, IUPAC ने जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माना है। ठीक, अब हमारे पास जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई, EMF की भी बात हो गई, अब हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज। अब अगर हम साल्ट ब्रिज को देखें, सो साल्ट ब्रिज इट कंटेन्स अ साल्ट ऑफ पोटेशियम के साल्ट इसमें होते हैं, लाइक पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ये होते हैं, एंड इट इज मिक्स्ड विद जिलेटिन के साथ मिक्स करके ये साल्ट ब्रिज बनाया जाता है, एंड इट्स फंक्शन इज टू इनिशिएट द सेल एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जैसे हम लोग रीडिंग ले लेते हैं और यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं करते, सेल रखा हुआ है, ठीक है, या डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉपर डाइपॉजिटिव कलेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है साल्ट ब्रिज, इनके कंजर्व इलेक्ट्रिक करंट को न्यूट्रल कर देता है, और जब भी हम रीडिंग लेने के लिए इसको कनेक्ट करते हैं, हमने इलेक्ट्रोड चूंकि नहीं निकाले तो जिंक तो लगातार इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कॉपर डाइपॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे रीडिंग में कोई वेरिएशंस ना आए, तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, इनके कलेक्ट चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। और चूंकि पोटेशियम चूंकि सबसे हाई रिएक्टिव एलिमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, ना तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ना ही कॉपर इसको डिस्प्लेस कर सकता है, कोई भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और इससे हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर मिलती है। तो आई होप कि आप लोगों को गैल्वेनिक सेल की
वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल और साल्ट ब्रिज, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आती है या कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप मुझसे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।